We are studying Canto 1, Chapter 2, Text 16, Divinity and Divine Services we are studying. So let us begin. Shushrusho Shraddha Dhanasya Vasudeva Katharuchi Shan Mahatsev Vipraha Punyatirtha Nishevanat Shushrusho Shraddhanasya Vasudeva Katharuchi Shan Mahat सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिषेवनात् शुश्रूषोः श्रद्धान्धनस्य वासुदेव कथारुचि श्यन्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिषेवनात्. Yes. Anyone would like to read the shloka? Please go ahead. तया श्रद्धानश्च वासुदेवा कथारुचि तान् महत्वसेवया विप्रा पुण्यतीर्था निसेवनात्. Okay, next. श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महातसेवा विप्र पुण्यतीर्थ निशावनात्. Okay, next. Anyone else? Yes, Raghunandan. I don't know if he has joined by audio. Okay. Word to word meaning. This verse is also an important, so please try to memorize this one also. Okay. Shushrushoha, one who is engaged in hearing. Shraddha Dhanasya, with care and attention. Vasudeva, in respect to Vasudev. Katha, the message. Ruchi, affinity. Shiyat is made possible. Mahat Sevaya, by service rendered to pure devotees. Vipraha, O twice born. Punya Tirtha, those who are cleansed of all vice. Nishevanat, by service. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudev. Now, here is an Asta, here is an like answer to you. As you said, you don't have taste for hearing, like kabhi kabhi. I don't know, you have the taste for hearing, but sometimes you feel like we don't have taste. Reading Mataji, hearing के लिए है taste. You have taste for hearing, na? So similarly, reading is Reading a silent hearing, Mataji. हाँ. रीडिंग इज एन साइलेंट हियरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है. कभी कभी होता है तो बहुत बहुत पढ़ लेते हैं, फिर कभी ऐसे टाइम होता है कि अरे इच्छा ही नहीं हो Here रही. is an answer is given, like by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service, one gain affinity for hearing the messages of Vasudev. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया गया कि हाउ इफ यू वांट टू हैव द टेस्ट फॉर हियरिंग, अगर हमें कथा रुचि चाहिए भगवान का, तो उसके लिए वी हैव टू सर्व द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड. Without serving them, we cannot get the affinity to listen the messages of Godhead or Vasudev. So this is the foremost important thing, that we have to have the devotional service, especially rendering service to the devotees. जब तक हम भक्तों की वैष्णव सेवा, जैसे that song is there, that we sing on Ekadashi, that Shuddha Bhakta Charana Renu Bhajana Anukula. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालधि कर मूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालधि कर मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल. If you want that your bhajan will be अनुकूल, अनुकूल मतलब कि आपका भजन जो है वो अच्छे से चले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैष्णव सेवा करनी चाहिए. जैसे कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा अपराध क्या है, वैष्णव अपराध. हमारे पास 10 नामा अपराध है, 32 सेवा अपराध है, ठीक है, और उन सब में भी सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध. अब बाकी कोई और अपराध करोगे, स्टिल आप कम से कम भक्ति में तो टिके रहोगे ना, स्टिल यू कैन डू योर डिवोशनल सर्विस. बट अगर आपने गलती से भी वैष्णव अपराध कर दिया तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी भक्ति चली जाएगी. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू बी रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज, कि हमें भक्तों की सेवा करनी है. मुझे एक पास्ट टाइम याद आ रहा है, देयर वाज एन चंडीदास और कालिदास, एक डिवोटी है चैतन्य लीला में,
कि चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों से ना कभी भी किसी को जैसे चरणामृत वो पीने नहीं देते थे. ही डिडंट अलाउ द डिवोटीज टू टेक चरणामृत फ्रॉम हिज लोटस फीट. बट ये जो भक्त थे कालिदास की चरण, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो मगर ये जब भी आते थे ये चैतन्य महाप्रभु के पांव धोते थे और वहां से पूरा चरणामृत पीते थे. और चैतन्य महाप्रभु कभी उनको ऐसा डांटते नहीं थे. तो ऐसा उन्होंने क्या किया था कि चैतन्य महाप्रभु उनको कभी रोकते नहीं थे. दो चैतन्य महाप्रभु बाकी किसी भक्त को ऐसा करने नहीं देते थे. He never allows anyone. But this devotee, Chaitanya Mahaprabhu never stopped. What was the reason behind? Actually ये जो devotee थे ये बहुत प्योर डिवोटी थे और ये भक्तों की सेवा किया करते थे. भक्तों की सेवा मतलब कि ये क्या करते थे, कोई भी भक्त है उनकी सेवा करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको महाप्रसाद खिलाएंगे और उनका जो उत्तिष्ट होता था मतलब जूठन जिसको महाप्रसाद कहा जाता है फिर वो उसको ग्रहण करते थे. सो ये उनका एक क्वालिफिकेशन था दैट मेड हिम लाइक चैतन्य महाप्रभु ने उनको अलाउ किया था अपना चरणामृत लेने के लिए. That means he got the mercy of Krishna himself. Chaitanya Mahaprabhu and Krishna is not different, na? So Jai Krishna Sai Gaur Sai Jagannath. So Krishna and Chaitanya Mahaprabhu is not different. So Chaitanya Mahaprabhu का उनको चरणामृत मिलता था. किस वजह से? Because he was serving the Vaishnavas. And service mode भी देखो वो discriminate नहीं करते थे. जो वैष्णव होता है वो शूद्र जाति या जैसे निम्न वर्ग है, कास्ट अगर कोई लगा है, रंग कोला है, गोरा है, काला है, इन सबसे ऊपर है. वैष्णव इज नॉट लाइक लिमिटेड टू द बॉडीली प्लेटफॉर्म. वैष्णव इज अबव ऑल ऑफ देम, यू नो, because he does the Vaishnav seva. Because of that he got the service of, he got the Charnamrita of Chaitanya Mahaprabhu. So similarly it's not just the hearing the messages of Vasudev we get the katha ruchi कि हमें सिर्फ भगवान के मैसेज सुनने के लिए रुचि आती है. और जब वैष्णव सेवा करते हैं हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो एक तरह से इट जस्ट गोज लाइक अ रॉकेट यू नो. रॉकेट के पीछे आग लगता है, रॉकेट कितना स्पीड में भागता है. सो इट जस्ट गोज लाइक दैट. सो तभी तो चैतन्य महाप्रभु has taught us one verse that says गोपी भरते और पद कमल दास 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 अनुदास. So we have to become servant of servant of servant of servant, you know. That way we can come in the eyes of Krishna. Otherwise who we are that Krishna is going to see us? No one, you know. Krishna हमें ऐसे क्यों देखेंगे? What we have done, what the qualification we have? No qualification. But if we become the servant of servant, if we do the service to Vaishnavas, if they get pleased, then that is the advancement और भक्ति. हम लोगों ने I think 1 to 6 या किसी पिछले वर्ष में पढ़ा भी था. The perfection of spiritual life is the satisfaction of spiritual master. And who is the spiritual master? Spiritual master is a pure devotee of Lord. कौन है spiritual master? कौन है हमारे गुरु? कौन है? Who is a pure representative of Krishna. भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है ना. जब उनको सेवा करते हैं वो प्रसन्न होते हैं. So that is the perfection of our devotional life. You know, that is the perfection of devotional service. अभी पिछले वर्सेस में we understood what is the importance of rendering devotional service, है ना. हम लोगों ने पढ़ा कि devotional service का कितना महत्व है. अब ये बात आई और devotional service में 9 limbs होते हैं. The first limb क्या है भक्ति का? श्रवणम. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम. तो पहला क्या है? श्रवण. श्रवण मतलब hearing. पहला limb भी क्या है? hearing का ना. But how many of us have that taste for hearing? कितने लोगों के पास इतना taste है hearing का? You know, मतलब there are so many mundane songs, there are so many kirtanas are there, but how much the taste we have और कितना gossip होता है. gossip भक्तों में भी gossip होती है. पता कैसी? उस भक्त ने ऐसा कर दिया, उस माता जी ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया. This is a devotee gossip. पर ये भी प्रजल्पा है ना. हमें ग्राम्य कथा नहीं करनी है, प्रजल्पा नहीं सुनना है. उसके लिए रुचि नहीं चाहिए. रुचि किसके लिए चाहिए? कथा वैष्णव. Like we have to have the रुचि for कृष्ण कथा. अभी पिछले श्लोक में 1 to 8 what we studied. किसको याद है 1 to 8? Repeat the shloka. Yes, who has memorized the shloka? 1 to 8 किसको याद है? सुनाओ. Asta, you remember? Yes, repeat करो Asta. सावेपम सपरो धर्मो. 1 to 6. I'm asking for 1 to 8. Sorry. Yeah. धर्मस्वान् स्थिता पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः न उत्पद्यते यदि रतिं क्षमा एव हि केवलम्. मतलब एनी एक्टिविटी डेट मैन परफॉर्म, कोई भी कार्य आप करते हो, यदि वो भगवान की कथा सुनने के लिए आपकी रुचि ना बढ़ाए तो वो क्या है? यूजलेस लेबर है ना. सो दैट मीन्स
वी हैव टू, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या बताया जा रही है, वहां पे क्या बोला गया कि कोई भी कार्य जो भगवान की मैसेज सुनने के लिए आपकी रुचि नहीं बढ़ाता है वो क्या है, यूजलेस लेबर है, इट इज सिंपली अ यूजलेस लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ टू इंक्रीज दैट हियरिंग, दैट एफिनिटी फॉर हियरिंग। ठीक है, पहले तो बोला कि कोई भी ऐसा कार्य जो ना करे, मगर फिर कौन सा कार्य है कि जिससे हमारा ऐसा हो, उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। सो व्हाट इज द एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म, जिससे हमारी जो भगवान की जो कथा है उसमें रुचि है, तो दैट इज the serving the Vaishnavas, those who are freed from all vices. That is, we have to serve the pure devotees. You know, जब तक हम शुद्ध भक्तों को नहीं सेवा करेंगे, भगवान का मैसेज सुनना तो क्या, किसी भी चीज में रुचि नहीं आएगी। So whenever we fall, whenever we like, you know, what is our backup? हमारा बैकअप क्या है? जब भी हम भक्ति में हम लोगों को थोड़ा लगता है ना कि आगे बढ़ नहीं रहा है, इट्स आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग and I'm not getting taste for reading or hearing. So simply just leave everything and go and find a Vaishnava and serve them. कुछ नहीं करना. So I was telling कि any case when you feel down in your bhakti, so what we have to go, just leave everything, find a Vaishnava, go and render service to them. Then you will get some taste for service. Then you get some service, then some taste for devotional service. Okay, so this is how important is the Vaishnava seva. And there was like one story, I think मैंने पहले भी सुनाई थी कि there was a in a South India there was a devotee who is a devotee of वरदराज. वरदराज का वो सेवा, वरदराज भगवान है, उनकी सेवा किया करते थे, वो भी डायरेक्ट सर्विस. व्हाट वाज द डायरेक्ट सर्विस? ही वाज फैनिंग द लॉर्ड, भगवान को पंखा चामर डुलाते थे. और शाम को जब वो लेट हो जाते थे तो एक और भक्त थे, वो उनको उनके घर तक, क्योंकि अंधेरा होता था तो उनको उनके घर तक छोड़ने जाते थे अपना लैंटर्न लेके. तो ये जो इनका मित्र था जो उनको रोज शाम को छोड़ने जाता था, उन्होंने इनको बोला, क्योंकि इनका तो भगवान वरदराज से अच्छा बनता था, तो बोलते कि आप तो भगवान से बातें भी करते हो, तो आप क्यों ना उनसे पूछो कि मैं भगवत धाम कब जा पाऊंगा, तो प्लीज उनको पूछो, लेट मी नो व्हेन आई कैन गो बैक टू गॉड. तो इन्होंने बोला ठीक है मैं पूछूंगा. He asked Lord वरदराज कि when this person जो मुझे रोज शाम को बोलता है, भगवान वरदराज आप जानते हो वो जो डिवोटी मुझे रोज शाम को घर छोड़ने जाता है आधी रात को लैंटर्न लेके, तो वो मुझे पूछ रहा था कि वो भगवत धाम कब जाएगा, आप बताओ जरा. तो लॉर्ड सेज he will go in this very lifetime, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और ये तुम्हारी सेवा कर रहा है, क्योंकि तुम्हें वो शाम को छोड़ने जाता है, तो that's why he will go back to God in this very lifetime. इसीलिए वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा. तो देन इनके मन में भी शंका आया कि मैं अपने लिए भी पूछ लेता हूँ, मगर इन्होंने पूछा नहीं. तो मगर सेज ना, लॉर्ड इज अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग, कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है उनको सब पता है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग लॉर्ड सेज तुम्हें कुछ पूछना है क्या, बोलो, मुझे लग रहा है शायद तुम्हें कुछ पूछना है. कहते नहीं मुझे क्या पूछना, कुछ नहीं पूछना. कहते नहीं बताओ क्या बोलना, मैं तुम्हें भी आंसर दूंगा. He said कि आपने उसको बोला वो भगवत धाम जाएगा, वो तो मेरी सेवा कर रहा है, मतलब आपने बोला कि मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं तो आपकी डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या चांस है, मैं तो जाऊंगा ना इसी लाइफ टाइम में. तो लॉर्ड सेज नो, यू विल टेक मेनी लाइफ टाइम. ही सेज हाउ सो, व्हाई? मैं तो आपकी डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, दिन रात करके आपको पंखा झुलाता हूँ इधर गुफा में आके, कहीं और जाता नहीं, कहीं बाहर देखा नहीं, तो मैं क्यों इतना लाइफ टाइम लगेगा? बोला क्यों? क्योंकि तुमने किसी भक्त की सेवा नहीं की. जो मेरी सेवा करता है इट्स फाइन, इट्स ओके, मतलब मेरी सेवा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द सर्विस ऑफ माय डिवोटी. यू नो, कि जो मेरे भक्त की, कहते हैं इन आदि पुराण ऑल्सो कृष्णा हैज सेड टू अर्जुना, यो मे भक्त, कहते हैं ही सेज दोज हु आर माय डिवोटीज आर नॉट माय डिवोटी, बट द डिवोटी ऑफ माय डिवोटी इज माय डिवोटी. जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है. So that time then he left the service of Lord and he went out to find some Vaishnava and do the service. Then Lord is pleased. So similar way, so that is the one point ki how important it is कि Lord himself wanted that the service should be rendered to devotees, कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए. And moreover the another point it is, if we want some taste in our bhajan, so we need to have the sangha of sadhu sangha, you know. तो जब साधु संघ आता है, so we already actually by the associating with devotees we are associating with Lord himself. हम भगवान का संग करते हैं. क्यों? There are 64 limbs of bhajan. भक्ति के 64 अंग हैं, जिसमें से 5 अंग में क्या बोला गया है? एक है like धाम निवास, भागवत चैंटिंग, you know there are 5 limbs. उसमें से एक जो लिम्ब है वो क्या है? साधु संग करना, धाम में रहना, ठीक है, डिटी वर्शिप करना, चैंटिंग करना. ये ऐसे लिम्स बताया ना, उसमें 5 लिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो
अब क्या होता है, जो भक्त होता है वो अपने हृदय में धाम को कैरी करता है. वेयर डिवोटी कैरी द धाम इन देयर हार्ट. सो वेर एवर देर इज द असेंबली ऑफ डिवोटीज देर इज ऑलरेडी धाम. और भगवान अपने धाम से एक कदम भी बाहर नहीं गए हैं. तो जहां भक्त है वहां धाम है, और जहां धाम है वहां भगवान विराजते हैं. तो we already get the association of Lord by simply taking the sadhu sangha. और एक और आता है ना, that what we say is Shraddha, then sadhu sangha, and then bhajana kriya. So this is the 9 steps. You know, ये भी एक 9 steps हैं हमारे भक्ति के. पहला क्या है? श्रद्धा, faith. faith से हम साधु संग करते हैं, और साधु संग से फिर क्या होता है? भजन क्रिया होती है. Then our bhajan kriya is started up. But उसके पहले एक साधु संग चाहिए ना, then only the bhajan kriya started up. Okay. We'll go through the purport, what Prabhupada has said. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called devas or godly living beings, and there are men called asuras or demons who are against the authority of Supreme Lord. ठीक है, जो सुराज हैं और असुरा, सुरा होते हैं देवगण, ठीक है, जो भक्त भगवान की ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, एंड असुरा मीन्स जो भगवान के अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, डीमंस लोग. ठीक है. इन भगवद गीता 16th chapter a vivid description of the asuras is given, in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. यही ये भगवद गीता के ये जो श्लोक है, भगवान ने उसमें कहा है that जो मूढ़ा होते हैं वो मुझे समझ नहीं पाते हैं. ठीक है, वो मुझे क्या एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हैं या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझेंगे, वो भगवान नहीं समझते हैं. तो क्या ड्यू टू देयर इग्नोरेंस की वजह से वो बहुत अपराध करते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड पुट देम इनटू द वूम, जहां पे वो बार बार क्या है निम्न में ही जो स्पीशीज है उसी में जन्म लेते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ. अगर लाइक सपोज यू आर गेटिंग बोर्न इनटू अ वेरी लो फैमिली, तो आपके पास मौका ही नहीं है ना भजन पढ़ने का, भजन करने का, या भागवत पढ़ने का, या ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता है आपको. जैसे हमारे इंडिया में कई ऐसे विलेजेस हैं जो मतलब बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, है ना. वहां पे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना. मगर ये कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एंड समा कुछ ना कुछ स्कीम रहता है. अब ये पिछड़े जो गांव के लोग हैं उनका उतना अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर नहीं मिल पाता उनको. वो दो दे आर वेरी एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, बट दे डोंट गेट दैट एक्सपोजर कि वो आगे लाइफ में कुछ कर पाए. तो सिमिलरली व्हाट हैड हैपन, just not following the orders of Lord and just offending the Vaishnava, what had happened, we are cast and we are get to take birth in such a lower species कि अगर हमें वो रुचि कभी जागा भी ना भगवान के लिए, हमें वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा. अंडरस्टैंडिंग, वो एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाएगा. दैट विल ओनली हैपन बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ किसी वैष्णव का बहुत कॉजलेस कृपा होगा, तब कहीं उस निम्न जाति से हम ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो देयर आर नो वेज. You know, so we are fortunate enough कि हम इस इस्कॉन से कनेक्ट हो पाए हैं, या प्रभुपाद के ग्रंथों से जुड़ पाए हैं, कि हमें मौका मिला भक्ति करने का. नहीं तो जो ऐसी प्रवृत्ति हम लोगों की जैसी कंडीशनिंग है ना, like we are also like so degraded, we don't deserve these things, but it's like Vaishnava's mercy that we are into this spirituality, so we should take this very seriously. Then why should not we serve Vaishnavas जिनकी कृपा से हम भक्ति में आए हैं? We got this opportunity to grow further. Why not to serve them? You know, we have to serve them. Then it says, these asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. जैसे मैंने क्या बोला कि ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? Only by the causeless mercy of Vaishnavas. प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद ये तो हमारा भाग्य है कि हम लोग भक्ति में आ पाए हैं, कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में. प्रभुपाद ने बोले ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, ये भक्त है जो तुम्हारे लिए भाग्य लेके आया है. Like the devotees are the one who bring the fortune for you. You are not fortunate. You are just the, like कहते ना causeless mercy क्या होती है? What is mean by causeless mercy? Means बिना कारण की कृपा मिलना. कोई कारण नहीं है मगर आपको मिल रहा है. जैसे कोई दुकानदार आके आपको बोले, मेम साहब ये आपके लिए ये सामान है, आप ले जाओ. बोले भाई क्या कर रहे हो? आई डिडंट केम टू योर शॉप, मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाया, पैसा नहीं दिया, आप कैसे मुझे सामान दे रहे हो? ऐसे नहीं मैम साहब आप ये सामान लेके जाओ मैडम आप. ठीक है, दैट इज बिना कारण के आपको सामान देके जा रहा है. लाइक ही इज गिविंग यू सो मच प्रेशियस प्रोडक्ट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टेक इट, हैव इट.
यू नो, ये नहीं कि आज मेरा मूड बड़ा अच्छा तो आप ले लो, नहीं नहीं, आप ले लो, आज मेरा सेवा का भाव ले लो। तो दैट इज कॉल्ड कॉजलेस। बिना कारण के कोई आपको इतना सामान देके जा रहा है, तो बिना कारण के हमें कोई भक्ति देता है, किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए ना। एक्चुअली यस्टरडे नाइट वी वर ऑन द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सो व्हाट हैड हैपन, तो कुछ दो व्यक्ति थे, उनसे मेरा बात हो रहा था, तो दे वर सेइंग कि मैम ये सही टाइम नहीं है। एक्चुअली वी गॉट टू टाइम इन द इवनिंग टाइम ओनली, वी आर गोइंग फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो वो कह रहे थे कि मैम ये सही टाइम नहीं है आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मतलब रात का समय है। तो मतलब डोंट वरी, आई हैव माय ब्रदर विद मी। एंड कहते नहीं ये तो अच्छा भी नहीं है, भगवान का काम तो सुबह दिन में करना चाहिए। तो मैंने बोला दिन में आप कस्टमर्स के साथ बिजी रहोगे, आप बोलोगे कस्टमर्स है, टाइम नहीं है। और भगवान के काम के लिए इट्स नॉट एन एनी ऑस्पिशियस टाइम वी हैव टू लुक। whenever you start the devotional service, you started up doing the service, वही auspicious समय है। and I told him कि and moreover we are not doing कि मेरी पॉकेट में कुछ नहीं जा रहा है, we are doing it because Krishna said in Bhagavad Gita, those who glorify my message they are very dear to me। जो रिस्क लेके मेरा प्रचार प्रसार करते हो बहुत प्रिय है मुझसे। मतलब अगर आपको भी भगवान का प्रिय बनना है तो आप भी भगवान का प्रचार प्रसार करो ना। टुडे इज गीता जयंती, व्हाई डोंट यू टेल पीपल टू रीड भगवद गीता? And why to tell people, why don't you take Bhagavad Gita and read the Bhagavad Gita for the pleasure of Lord? And that's how the conversation was there. So like I was just trying to convey him कि this is how actually the Vaishnava are compassionate. I say कि 8 साल पहले मुझ पे भी किसी ने एक कृपा की थी, ये भगवद गीता मेरे को दिया था, and मेरा लाइफ चेंज हुआ है। So that's how I was also distributing these books, because I've seen that mercy, that compassion on me. That's why that compassion is arousing in my heart also, because जो भक्त होते हैं वो किसी के द्वेषी नहीं होते हैं, मगर बिकॉज दे आर इन लव विद कृष्णा, सो दे आर इन लव विद ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल्सो। क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं तो उनका जो प्रेम है वो सभी जीवात्माओं के लिए होता है कि सबका उद्धार होना चाहिए। कहते हैं ना वैष्णवाजार परा सुखा दुखी, कि कोई अगर परा दुखा दुखी, अगर कोई दुखी है सो दे आर लाइक, उनका हृदय रोता है। आई रिमेम्बर प्रभुपाद व्हेन ही वॉक्स इन द स्ट्रीट्स इन वेस्टर्न कंट्री, प्रभुपाद जब ट्रेवल करते थे, जब रास्ते में सड़क पे लोगों को देखते थे, प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकलते थे। पता है क्यों? प्रभुपाद कहते हैं किसे अपनी जिंदगी बेकार कर रहे हैं, क्यों नहीं, अगर ये भगवान का नाम लेंगे इनका लाइफ सुधर जाएगा। So Prabhupada used to cry that they are not Krishna conscious, they are missing the opportunity of getting this human form of life, because I said this human form of life is very rare, very very rare, and to get the association of devotees, that is more rare। कि कहते हैं ह्यूमन मनुष्य जीवन मिलना तो है ही रेयर ना, मगर किसी साधु का संग मिलना उससे भी रेयर है। to get the opportunity to have the sadhus in our life, so that's why we have to be very careful whenever we have the devotees. We should take the full advantage of their association to learn something from them, to advance in bhakti, to inquire from them, to render some service कि आपका कुछ भला हो जाए, otherwise there is nothing। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीवा का स्टोरी था कि they got the opportunity to enter into Krishna लीला, कि भगवान नंद बाबा के कोठियाड में they were the trees, और भगवान की कृपा के बिना किसी को अपने पास्टे में एंट्री नहीं मिलता। एंड ओनली दी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटीज, उन्हीं को मिलता है कि दे ओनली गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी विद लॉर्ड एंड टू पार्टिसिपेट इन देयर पास्ट टाइम्स। अदरवाइज किसको मौका मिल रहा है? नलगिरवा मणिग्रीवा, दे वर टोटली इंटॉक्सिकेटेड, ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल बाबा, दे आर नॉट इवन चेंटिंग द होली नेम। आर दे चेंटिंग? जब नारद मुनि ने उनको देखा, व्हाट दे वर डूइंग, दे आर एसोसिएटिंग विद विमेन्स एंड दे वर टोटली इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंकेड, टोटली क्या है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे थे ना। दे आर नॉट एट ऑल Migrari Shikari. No, Asta, yeah, that is also in case, and this is Nalakuvara Manigriva also. So, यहाँ पे क्या हुआ था? They were properly, they were breaking the principle. They are not even chanting the holy name. उससे पहले कौन सा जप कर रहे थे, devotional service कर रहे थे. And there are yogis who are meditating on Lord and chanting His name. Krishna didn't give them the opportunity to enter His pastime. And why these people got the opportunity to be in the courtyard of Nanda Baba? Because Narada Muni का कृपा मिला उनको। किसका कृपा मिला? नारद मुनि का। दो नारद मुनि cursed them, इन्होंने offend किया ना, वैष्णव अपराध किया, they didn't receive Narada Muni properly. जो women थी, they still cover up their body parts, but they Nalakuvara and Manigriva, they are like shamelessly standing there. And what Narada Muni says, may you become trees, आप जितने जन्मों तक पेड़ बने रहोगे। मगर कहाँ पे? भगवान के घर पे यार, मतलब just in the courtyard of Nanda Baba, you are seeing Krishna from very childhood. And Krishna then he said, Krishna says, I have no interest seeing these people, who they are,
कौन लोग है ये, कोई मेरे को लेना देना नहीं है, बट नारद मुनि ने बोला था कि भगवान जाके देख लेना, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिलीवर देम, जस्ट दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग. And that's how this is the mercy of Vaishnavas. You know, they were totally intoxicated. The Jagai Madai case is there, and that the Mrigrari that Asta just told about Mrigrari, he also get the mercy of Narada Muni. वो तो जानवरों को आदमरा छोड़ता था. That's such a cruel thing. किसी जानवर को आदमरा देख के तो मजे लेना. And he just got the mercy of Narada Muni. And उसके बाद ऐसा वैष्णव बने कि चींटी को मारने से भी is like नहीं, चींटी को भी नहीं मारना है. He becomes such a pure devotee. So this is the mercy of Vaishnavas. So what to say? There are many cases. Dhruva Maharaj got the mercy of Narada Muni. Then Prahlad Maharaj got the mercy of Narada Muni. You know, Valmiki also got the mercy of Narada Muni. He was a dacoit. Dacoit था ना, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे. So many got. And in a Ramanuja Sampradaya, there is a one Alvar. मुझे नाम नहीं याद है उनका. He was a वो लुटेरे थे, लोगों को लूटते थे. You know, he used to loot people, मतलब पैसा चोरी करना. तो एक बार राजा उनके पास जाते हैं, कहते हैं, जो किंगडम के वहां के राजा थे, उन्होंने बोला कि देखो तुम ऐसा चोरी करते हो, यू शुड नॉट डू दिस थिंग्स. एक काम करो, तुम मेरे राज्य में टैक्स कलेक्टर बन जाओ, ठीक है, फिर तुम मेरे पास पैसा जितना भी है आएगा, तो आपको लूटपाट करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी गुड जॉब फॉर यू, क्योंकि टैक्स कलेक्टर के थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, नहीं तो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं. तो उनको वो जॉब दे दिया. तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ही गॉट द एम्प्लॉयमेंट. व्हाई ही हैव टू लूट नाउ? तो अभी उनको जॉब मिल गया. ही स्टार्टेड अप. तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और कहा कि ये स्त्री मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन मतलब चलेगा, अच्छा चलेगा. तो वो स्त्री जो थी वो वैष्णव थी. तो उसने बोला कि यू वांट टू गेट मैरिड टू मी, इट्स ओके, बट फॉर 1 ईयर आपको क्या करना है, आप वैष्णव बन जाओ. तो बोला अच्छा वैष्णव बनना है, ठीक है. वो मंदिर चले जाते हैं, तिलक धोती कुर्ता पहन लिया. बोला लो मैं वैष्णव बन गया, मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ. कहते वैष्णव ऐसे थोड़ी ना बनते हैं. Understanding Vaishnava is not from the outward dress. Ki you have a very nice tilak, kanthi, dhoti, kurta, and you are just going out in the society. See, I'm a devotee having the bead bag, Bhagavad Gita. मगर अंदर से चेतना शुद्ध नहीं है. You are not following the instructions of Prabhupada and Krishna. You are simply a कली चेला. क्या हो आप? भक्त के भेष में कली चेला हो आप. You are just wearing the tilak, but you are just out to destroy people. You know, to just what we say. Exploit them, you know, you're not a devotee. So उसने बोला कि नहीं आप भक्त थोड़ा ना, आप तो अभी भी वैसा चेतना तो चेंज नहीं हुआ, you're not chanting the names. तो बोलो कि कैसे वैष्णव बनो. तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, 1 साल के लिए आप वैष्णव सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आना, we will both get married. तो बिकॉज ऑफ दैट लेडी ही सेड ओके आई विल डू द वैष्णव. अब वैष्णव को लाते कैसे थे? जितने भी गांव में जो वैष्णव थे उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लेके आते थे, उठा उठा के. ये भी नहीं कि ऐसे वैष्णव है तो आसाम से आइए प्रभु जी माता जी, ना ना, सीधा उठाया बैठो इधर, और जबरदस्ती पाँव धोते थे उनके. पाँव धो के तो ही यूज्ड टू ड्रिंक दैट चरणामृत. दिस वाज द क्वालिटी. क्या करते थे वैष्णव सेवा? ही यूज्ड टू ड्रिंक दैट चरणामृत. जो उनको जबरदस्ती पकड़ के लाते थे, खिलाते थे, ही यूज्ड टू ड्रिंक दैट चरणामृत. What had happened with the passage of time, he became more humble. Just by drinking the Charanamrita of Vaishnavas, he started up serving the Vaishnava more humble, like, and people were seeing that change. जितने भी devotees थे सब बहुत खुश हुए कि he was like changing now. And even one time तो क्या हुआ, राजा के जो महल में जो धन राशि था वो भी उन्होंने वैष्णव सेवा में लगाया, you know, और वहां से खत्म हो गया. तो राजा ने उनको बोला कि तुमने तो मेरे ट्रेजर से पैसा निकाला, ऐसा क्यों? तो इसे इसकी वैष्णव सबसे ऊपर है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा. तो राजा ने उनको जॉब से निकाल दिया. ही अगेन स्टार्टेड अप लूटिंग द पीपल. लोगों को दोबारा चोरी, मगर इस बार किस चीज के लिए? अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, वैष्णव सेवा के लिए. तो एक बार तो क्या हुआ, देयर वाज लाइक, मगर राजा को काफी परेशानी हुई. स्टिल वांटेड टू अटैक हिम, मतलब उनको पकड़ना चाहते थे. सो देयर वाज एक बार एक पति पत्नी थे, बहुत सारे मतलब बुलक पार्ट थे, उसमें बहुत ज्यादा सोना था. तो इन्हीं के फ्रेंड ने उनको बोला कि ऐसे एक पति पत्नी और कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतना सोना है हमारा, तो मतलब कितने सालों तक हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं, हमें लूटने की जरूरत नहीं अगर ये हमारे हाथ लग जाए. तो दे गॉट दोज हस्बैंड एंड वाइफ, उनको पकड़ा, बंदी बना लिया, और मतलब उनका सोना तो चुरा है, इनके भी सोना जो है, इनके भी जितने भी थे गहने सब उठा लिए. और मगर जो लेडी थी, उनके बिछुआ पहनते हैं ना औरतें, बिछुआ पाँव में पहनते हैं, वो निकल नहीं रहा था. तो व्हाट डिड हैपन, ये जो व्यक्ति था जो वैष्णव सेवा कर रहा था, इन्होंने क्या किया, अपने मुंह से उसको निकालने लगा. तो जब निकालने लगा, ही वेंट इनटू एक्सटेसी, क्योंकि जो ये दंपति थे, ये रुक्मणी विठल थे,
उनके अलावा और कोई, they were themselves the रुक्मणी विठल who have come in the form of a husband and wife, and उनकी धूल जब पड़ी उनके मुंह में तो he was literally into the ecstasy, and वो काफी खुश हुए भगवान को देख के, मगर बोला कि ये जो गहने मैं वापस नहीं करूंगा। तो भगवान ने बोला क्यों? कहते नहीं मुझे वैष्णव सेवा करनी है, आपके पास तो बहुत कुछ है, बट आई हैव टू डू द वैष्णव सेवा, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न यू दिस योर ज्वेलरी। सो देन लॉर्ड वाज वेरी प्लीज्ड विद हिम, एंड he did continued his Vaishnav। वो उस औरत के बारे में भूल गया, because he became the pure devotee and he is one of the alvar। alvar means जैसे हमारे महाजन है, वैसे ही साउथ इंडिया में रामरी संप्रदाय में there are alvaras, ठीक है। so he was counted as one of the alvar। so this is the power of Vaishnava seva। चाहे आप अनजाने में करो, but you get the सुकृति, you know। so अगर अनजाने में भी कोई कर रहा है तो इतना सुकृति है, तो जानबूझ के करोगे तो कितना सुकृति है ना। so we have to do the Vaishnava seva। then further what he said कि जैसे मैंने बोला कि like only by the mercy of the Vaishnavas are the fortunate for us, fortune that bring the fortune for us। then it says such devotee of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord, as the sons of Lord, as servant of the Lord or associate of Lord। क्या बोला है कि जब ऐसे पावरफुल भक्त आते हैं बचाने के लिए, जैसे हमारे शीला प्रभुपाद हैं, he is the शक्ति वैश्य अवतार। कौन है शीला प्रभुपाद? he is an empowered soul। प्रभुपाद is a empowered soul, ठीक है, भगवान द्वारा empowered है पूरे विश्व को दे। तो 12 वर्षों में 70 वर्ष की आयु में 108 मंदिर और 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, एंड ही वाज जस्ट अ वन मैन आर्मी। he was a very empowered soul, he just came to save us all people। अगर प्रभुपाद नहीं होते, हम लोग कहाँ अभी धक्के खा रहे होते पता नहीं होता। देखो, though we all people might be inclined towards spirituality, किसी न किसी स्पिरिचुअल पाथ में होते, अगर देखा जाए कलयुग में अगर कोई सोसाइटी है that is really showing us the path to go back to Godhead, that is ISKCON only। वो सिर्फ ISKCON में ही है जो हमें प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है, and it is only the mercy of Srila Prabhupada that we are getting this opportunity to be part of this organization and getting this real form of bhakti and very easy process। इतना आसान मिल गया है कि भगवान को हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं इसको सिंपल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। कहाँ 64 से 16 माला दिया और 4 नियम बोला है? कुछ नहीं है। प्रभुपाद से चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, that's it, और वर्शिपिंग कृष्णा, दिस 4 एक्टिविटी एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यू आर बैक टू गॉडेड। जस्ट इतना फॉलो करना है। दिक्कत है क्या? सुबह 4 बजे उठ रहे हो, नाच रहे हो, है ना, जब कर रहे हो, भगवत पुस्तक वितरण करने जा रहे हो, इट्स अ डिफरेंट एडवेंचर। सो ऑल एक्टिविटी हैज अ ग्रेट फन, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस प्रभुपाद हैज गिवन अस। He said, but none of them falsely claim to be God themselves। so भगवान की जो सेवक है अपने आप को भगवान नहीं मानते। जब प्रभुपाद ने बोला था कि उनके शिष्यों ने जब प्रभुपाद को गुरु पूजा आरती करना शुरू किया ना, तो उन्होंने बोला कि ये अपने आप को भगवान समझते हैं। प्रभुपाद says, I am not God, but I am as good as God। क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उन्हीं की तरह उनका पूजा किया जाना चाहिए। You know, it is because he is a pure representative। so he is like as good as God, but not God। he is a pure servant of Krishna or Guru Maharaj, Prabhupada says। so then people says, oh yes। so मगर मायावादी कहते हैं मैं भगवान, तू भगवान, सभी भगवान, but Prabhupada didn't taught us like that। so this is a blasphemy declared by the asuras, and the demonic followers of such asura also accept pretenders as God or his incarnation। कितने बोगस गुरु हैं, कहते हैं मैं भगवान हूँ जी, मैं कृष्ण हूँ, मेरी सेवा करो। भाई आप कृष्ण कैसे हो गए? अब बूढ़े हो रहे हो, आपको दांत में दर्द नहीं होता? होता है ना, तो भगवान को दांत में दर्द होता है क्या? भगवान बूढ़े होते नहीं होते। भगवान इज नव यौवनम, you know, he's a nava yovnam, nava rasa, all the time ever youth, he never get old। but these demonic people, they claim themselves as God, and foolish लोग ही उनके पास सेवा करने जाते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो अपने इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ना चाहते, उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, फिर बाद में चीट होते हैं। मार्केट में वही चीज मिलती है जिसकी डिमांड होती है। people wanted to get cheated, that's where they found the cheaters, you know। in the revealed scripture there is definite information of the incarnation of God। तो कोई अपने आप को गॉड मानता है तो आप शास्त्र का साथ, तभी कहते हैं ना गुरु, साधु और शास्त्र। तो 3 चीजें हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। अगर आपको डाउट होता है कि आपके गुरु ने कुछ गलत कहा है, शास्त्र का हमें ध्यान देखना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा मेंशन नहीं कि नहीं, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक, यू नो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, जब मैम कोई उल्टा सीधा फॉर्मूला लिख देती है, हम बोलते हैं मैडम ये गलत लिखा है, ये किताब में तो ऐसा लिखा है। यू क्रॉस चेक थ्रू द बुक्स ना। तो सिमिलरली दैट्स व्हाई द शास्त्र इज देयर। और शास्त्र किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शास्त्र पे इतना एम्फसाइज किया जाता है कि जितना हमारे ISKCON में किया जाता है। प्रभुपाद से तुम्हारी 2 मिनट की प्रीचिंग क्या करेगी? किसी को किताब दो, किसी का जीवन बदल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ शास्त्र। दिस बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, दैट्स व्हाई प्रभुपाद एम्फसाइज ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है मंदिर का मार्बल बेचो, किताबें वितरण करो।
दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ शास्त्र, कि इफ यू हैव द शास्त्र यू गेट टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड, कि भगवान का भी जैसे कलयुग में बताया गया कि कल के अवतार आएंगे, मगर पूरा डिटेल मेंशन है, कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कौन माता पिता, पूरा एक्सप्लेनेशन है। सो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को क्लेम करते हैं मैं भगवान हूँ, बोलो शास्त्र में तो मेंशन नहीं, भागवत में कहाँ लिखा है बताओ। सो वी नीड टू चेक विद द शास्त्र, डोंट जस्ट फॉलो देयर वर्ड्स, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड चेक विद द शास्त्र, दैट्स व्हाई देयर आर गुरु साधु एंड शास्त्र, ठीक है। No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. तो जब तक शास्त्र के अनुसार उनको नहीं बताया गया, किसी को भी भगवान नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है। The servants of God. Sorry, I'm going little over time, but I wanted to finish up this verse. Can I go a little overhead? Just the 2 paragraphs are there. Can I take more time? Hare Krishna. Hari Bol. I can take some time, na? Yeah, thank you. Why you're sitting like this? Why you don't have to study? The servants of God are to be respected as God by the devotee who actually want to go back to Godhead. जैसे प्रपन्न ने बोला, representative is as good as God. तो उनको भगवान की तरह ही पूजना चाहिए, क्योंकि they are the pure representative ना. Such servants of God are called महात्मास और तीर्थास. तीर्थ क्या होता है? एक तीर्थ होता है तीर्थ स्थल, ठीक है, पिलग्रिमेज प्लेस है ना, होली प्लेस जिसको कहा जाता है, और भक्तों को भी तीर्थास कहा जाता है। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज तीर्थ है ना, सो लाइक जो भक्तों का ऐसा तीर्थास भी कहा जाता है। तीर्थास क्यों? जैसे मैंने बोला कि भगवान भक्त जो होते हैं वो धाम अपने साथ ही लेके चलते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड तीर्थास, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ गॉड अर्ज पीपल टू बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे नेवर टॉलरेट बीइंग कॉल्ड गॉड। मुझे याद है जब प्रभुपाद का एक समय आया था, प्रभुपाद के 4 सन्यासी डिसाइपल्स थे जिन्होंने ऐसा प्रचार करना शुरू किया था। प्रभुपाद ने बोला था कि मेरी जो सेवा भगवान की तरह करनी चाहिए, मतलब एज गुड एज गॉड बट आई एम नॉट गॉड। तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसा प्रचार फैलाना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद भगवान है, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, प्रभुपाद भगवान है। प्रभुपाद को जब पता चला था, प्रभुपाद वाज सो डिस्टर्ब्ड, प्रभुपाद ने 4 सन्यासियों को निकाल दिया था, बोला कि आप इस्कॉन से चले जाओ, और अगर वापस आना चाहते हो तो 10-10 मंदिरों का निर्माण करो पहले और फिर वापस आना। और उसमें से एक थे विष्णु जना स्वामी महाराज। And Vishnu Jana Swami Maharaj, he went out. Actually, initial time they don't know ना मायावाद philosophy, वैष्णव philosophy. So प्रभुपाद काफी डिस्टर्ब होते कि मुझे भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि they are not God, they are the servant of God. तो प्रभुपाद ने सभी सन्यासी को निकाल दिया, बोला कि 10 अगर आना चाहते हो वापस इस्कॉन में मेरी शरण में 10-10 मंदिरों का निर्माण करना फिर आना। उनमें से एक विष्णु जना स्वामी महाराज थे। He went out, he opened up 4 temples and प्रभुपाद को आके बोला, प्रभुपाद मैंने 4 मंदिर निर्माण किए। Prabhupada says, okay then, fine, मगर 6 और खोलने हैं। But still Prabhupada accepted him. So like that, he didn't like those ideas. ठीक है, तो भगवान के जो भक्त है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते, बिकॉज उनको पता है कि मैं दास हूँ, भगवान नहीं हूँ। अभी जैसे कई लोग भक्त जब दीक्षा ले लेते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं आई एम सच एंड सच, लाइक आई एम लाइक नंदप्रिया देवीदासी, सो आई कैन से ओ आई एम नंदप्रिया। आई एम नॉट नंदप्रिया, आई एम नंदप्रिया देवीदासी, मीन्स आई एम अ दासी, यू नो, आई एम अ सर्वेंट। इसीलिए आगे दास और दासी लिखा जाता है। आगे दास और दासी क्यों लिखा जाता है? आपको याद दिलाने के लिए, भाई आप भगवान नहीं बन गए हो, यू आर सर्वेंट, यू नो, यू आर ए सर्वेंट। So that's how it says. The servant of God. Okay, Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself, according to the indication of revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with hands and chant the name of Lord Vishnu. Chaitanya Mahaprabhu भगवान कृष्ण से अलग नहीं है ना, जैसे बोला जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। So Chaitanya Mahaprabhu, Krishna and Jagannath, there is no difference. They 3 are same and one. मगर चैतन्य महाप्रभु किस लीला में आए थे? यहाँ पे भक्त के रूप में आए थे ना, तो उनको जो भी जो जानते थे वो उनको कई बार भगवान की तरह पूछते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने कानों को बंद कर देते थे कि बोला मुझे नहीं सुनना है, मैं भक्त हूँ, और भगवान विष्णु का नाम जप करते थे, बिकॉज भगवान के भक्त कभी भी नहीं सुनना चाहेंगे कि मैं भगवान हूँ, बिकॉज दे आर सर्वेंट। So that's how he strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. तो strongly protest करते थे मैं भक्त हूँ, भगवान नहीं हूँ, though he was a God. But उनका पास्ट टाइम क्या था? He came as a devotee. The Lord behaved so to warn us against unscrupulous man who take pleasure in being addressed as God. तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने आप को क्लेम करता है मैं भगवान हूँ, we have to be very careful with that thing. इसलिए कहा जाता है we have to study the shastras. हम शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं ना, इसलिए हम लोग कोई भी हमें चीट कर देता है कि कोई भी बोल देता है कि बोला ऐसा बोला गया है।
हमें जब भी हम किसी का प्रचारक का भी लेक्चर सुनते हैं ना, लाइक यू आर लिसनिंग मी, ठीक है, अभी जैसे आप सुन रहे हैं, तो अगर यदि मैं भी अगर प्रभुपाद के जैसा अगर कुछ भी है जो प्रभुपाद ने नहीं बोला, अगर मैं वो बोलूं, तो यू हैव फुल राइट टू टोल मी कि माता जी यू आर नॉट टेलिंग एज पर प्रभुपाद, यू नो, बिकॉज अगर आपको पता कैसे चलेगा, आप इतने सारे लेक्चर सुनते हो, ठीक है, सो मेनी लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन राइट नाउ, अभी इतना कोविड का है तो सो मेनी ऑनलाइन थिंग्स सेशंस आर गोइंग ऑन, हाउ यू विल चेक हु इज टेलिंग यू ट्रू थिंग्स, कि कौन आपको सही बता रहा है कि नहीं, वो तभी पता चलेगा जब किताबें पढ़ी होंगी ना, इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, पुस्तक वितरण भी जरूरी है, मगर साथ साथ में पहले उसको पढ़ो और फिर वितरण करो, ठीक है, फर्स्ट यू बिकम डिवोटी देन मेक अदर डिवोटीज, पहले कहते हैं ना रेवोल्यूशनाइज विद इन देन रेवोल्यूशनाइज विदाउट, ऐसे बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, so revolutionize within, नरसिम्हा within, नरसिम्हा without, so first revolutionize within and then go out and revolutionize out, so first study shastra, understand whatever you listen ये शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, then you are on the right path, तब कोई भी आपको चीट नहीं कर पाएगा, मगर प्रभुपाद की किताबों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। The next is said, the servant of God come to propagate God consciousness and intelligent people should cooperate with them in every respect, कि भगवान के जो भक्त हैं, देखो मैं बता रही थी कि हमें भक्तों की सेवा करनी है, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी हाउ टू सर्व द वैष्णवास, कि क्या है, भगवान के भक्त किस लिए आते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो बुद्धिजीवी है वो उनको सपोर्ट करेगा, उनको कॉपरेट करेगा, अब जैसे पुस्तक के लिए उनको पुस्तक वितरण के लिए सपोर्ट किया, ठीक है, लेक्चर उनके ऑर्गेनाइज करवाए, ठीक है, कीर्तन ऑर्गेनाइज करवाए, उनको घर पे बुलाते हैं, सो लाइक दैट वी आर सर्विंग देम, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेके, ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन सर्व देम इन द प्रीचिंग मिशन ऑफ कृष्णा टू स्प्रेड दिस मिशंस, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो जो भक्त उस सेवा में लगे हैं आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, दैट वे यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ servant, ठीक है, by serving the servant of God one can please God, this is very important statement, just make note of this, by serving the servant of God one can please God more than by directly serving the Lord, मैंने कहा था ना कि भगवान अपनी डायरेक्ट सेवा में इतने खुश नहीं होते जितने कि वो अपने किसी भक्त का कोई सेवा कर रहा होता है उसके खुश होते हैं, अब जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट है, अगर आपको उसके साथ संबंध बनाना है, डायरेक्टली तो नहीं बना सकते ना, इतना बड़ा व्यक्ति है, अगर यदि उसका कुत्ता आपको रिकॉग्नाइज करे, हाँ, आपकी तरफ आके आपको हक करे, तो वो बोलेगा, वो नोटिस करेगा, अरे मेरा कुत्ता इसको लाइक करता है शायद ना, तो ये सही, अच्छा अच्छा ठीक है आने दो, सो सिमिलरली हम लोग ये कॉलर ये पहना है ना हम लोगों ने कंठी, दिस इज द डॉग कॉलर, क्या डॉग के गले में पट्टा होता है ना, ये भी पट्टा है, तो ये रिप्रेजेंट वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, हम भगवान के कुत्ते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि प्योर डिवोटीज आर डॉग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर वेरी डियर, कहते हैं इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग, and he says you want to love me love my dog, that's why you can become dear to me, so similarly you want to love Krishna, become dear to his devotee, then you can be pleased, you know, so that's how, so he says the Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and so are very dear to the Lord. इसके संदर्भ में एक स्टोरी है छोटा सा, I remember, देखो यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट क्या बोला गया, the Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, कि भगवान बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्तों की बहुत अच्छे से सेवा की जा रही है, because such servants risk everything for the service of Lord, क्योंकि जो भगवान के सेवक हैं उनकी सेवा के लिए कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, आपने जैसे प्रभुपाद है कितने हार्ट अटैक आए, बाकी जितने भी लोगों ने प्रभुपाद की सेवा की है ना वो कभी भी बेकार नहीं गई होगी, कृष्णा दे गॉट अ स्पेशल मर्सी बिकॉज दे हैव सर्व प्रभुपाद, यू नो, द सिमिलर वे if we also serve our Guru Maharaj or the Vaishnavas, those who are engaged taking risk to preach, we will also get the mercy. वही मैंने बोला ना, अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो ना तो सिर्फ भक्तों के पास चले जाओ, just be there and try to serve them, देखो आपकी भक्ति कैसे वृद्धि करेगी. So this is a secret behind that, you know. जैसे रामानुजाचार्य एक बार अपने एक शिष्य हैं उनके घर में, वो बहुत अमीर थे, तो किसी पिलग्रिमेज यात्रा से आ रहे थे, तो उन्होंने अपने 2 भक्तों को भेजा कि बोलना है इनको कि मैं घर पे आ रहा हूँ शिष्यों के साथ पे, तो अरेंजमेंट करके रखना. तो ये जो शिष्य था ये बहुत खुश हो गया, गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं. He was so very happy, मतलब जंप करने लगा, इतना जोश में आ गया, अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा गुरु महाराज आ रहे हैं. He was very happy. तो ये भक्त वापस आ गए, तो रामानुजाचार्य ने इनको एक और उस गांव में एक और शिष्य था उनका, वो बहुत गरीब था, मतलब उसको खाने को भी नहीं होता था, तो बोला कि उसको ही बोलना कि मैं उनके घर आ रहा हूँ, तो बोला ठीक है. तो उनको जब बोले वो भी बहुत खुश होते हैं कि बोले अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, ये तो आज तो मेरे झोपड़ी है भाग्य खुल गए. तो मगर उन भक्तों को तो
वो भी खुश होते हैं। तो रामानुजाचार्य इन भक्तों को पूछते हैं कि मेरे दोनों शिष्यों के पास आप लोग गए, तुमने बताया, क्या रिएक्शन था उनका? तो बोला कि जो आपका अमीर शिष्य है वो बहुत खुश था, बहुत बोल रहा था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, सेवा भाव की सेवा करनी, सभी दासों को लगा दिया कि अरेंज करो, अरेंजमेंट करो, गुरु महाराज आ रहे हैं। कहते अच्छा। कहते दूसरा वाला, कहते वो भी बहुत खुश था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, आज तो भाग्य की बात है। कहते अच्छा ये ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो तुम अमीर शिष्य के पास गए थे, उसने तुम लोगों को कुछ पानी शानी पूछा, कुछ बोला, तुम लोगों को बिठाया, कुछ खिलाया पिलाया? तो कहते गुरु महाराज नहीं, मतलब खिलाया पिलाया तो क्या, मतलब गर्मी तो बहुत थी, बट एक्चुअली वो खबर सुन के इतना खुश हो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोगों को बिठाना है या पानी पूछना है। कहते अच्छा। कहते वो दूसरा वाला शिष्य जिसके पास तुम गए, उसने पूछा तुम लोगों को? कहते हाँ गुरु महाराज, उसने पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर उसने हम लोगों को बिठाया कि मैं इतनी अच्छी, हम लोग इतनी अच्छी खबर लेके आए हैं। तो दो उसके घर में कुछ खास था नहीं, बट जो भी था उसने हमें अच्छे से ट्रीट किया। तो देन रामानुजाचार्य सेज कि मैं उस अमीर शिष्य के घर नहीं जाऊंगा, इसके घर जाऊंगा, क्योंकि ही सर्व्ड माय डिसाइपल्स। कि ये क्या है, शिष्यों की इसने सेवा की ना, भक्तों की सेवा की। तो सिमिलर वे वी हैव टू सर्व द डिवोटीज, देन वी गेट द मर्सी ऑफ कृष्ण। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स हाउ। ठीक है। So Lord declares in Bhagavad Gita 1869 that no one is dearer to him than one who risk everything to preach his glory. जैसे मैं बता रही थी कि भगवान के सबसे प्रिय कौन होता है? जो भगवान के प्रचार प्रसार के लिए रिस्क लेता है। मतलब जो प्रचारक है वो भगवान के बहुत प्रिय होता है। So you want to become dear to Krishna, then spread his glories. Okay? So by serving the servant of the Lord, one gradually get the quality of such servant. कि भगवान के भक्तों की सेवा करके हमें भी उनके गुण अपने आप आ जाते हैं। हमें अच्छे गुण तो नहीं होते ना, मगर जब हम कहते हैं, अब जैसे लोहा है, ठीक है, अब लोहा जब अग्नि के संपर्क में रहता है ज्यादा समय तक, तो अग्नि की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। He acquired the characteristics of fire. He started acting like a fire. So similarly, when you are in association with the devotees, you will become devotee for sure, है ना? So that is how. जैसे नारद मुनि चतुर्मास के समय उन्होंने वैष्णवों का सेवा किया था। How pure devotee he became. पहले तो वो एक सर्वेंट थे ना, मेड सर्वेंट के बेटे थे। बिकॉज ही सर्व द वैष्णव, ही बिकम द प्योर डिवोटी। सो सिमिलर वे, ठीक है। एंड thus one become qualified to hear the glories of God. तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, उनके गुण लेते हैं, तब हम क्वालिफाइड बन पाते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee. This is very important statement, just mark it out. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. So ये आप अपने आप में देखिए कि आपकी रुचि क्या सुनने में है। You want to hear the gossips? You want to hear वैष्णवा निंदा? You want to hear the mundane news? You want to hear क्या चल रहा है दुनिया में? Or you want to hear the कृष्ण कथा? कहते हैं रूपा गोस्वामी says लौल्यम is only मूल्यम, कि लौल्य मतलब the greediness for the devotional service is the only मूल्य। ठीक है, एक वही एक चीज है जो आपको भक्ति में बढ़ाता है। तो सिमिलर वे द ईगरनेस टू हियर अबाउट God's pastime is the qualification that will by which you can enter into the kingdom of God. So if you don't have that eagerness, अभी यहाँ पे नैमिषारण्य में सेजिस इकट्ठे हुए थे। They were telling to Suta Goswami, we are very anxious to hear about Lord pastimes. उनके बहुत सारे incarnation, we are very anxious. Means they are showing their eagerness. That's how the speaker would able to tell them ना भगवान के pastimes के बारे में। So do we have those eagerness to hear about the Lord all the time? कोई भी भक्त मिलता है तो आप क्या बात करते हो उनके साथ? Did you look for the Krishna katha or did you look for हाँ माता जी प्रभु जी कैसे हो आप, और क्या चल रहा है लाइफ में, what's going on? This is the question to ask to a devotee. हम लोग नॉन डिवोटी के भी तो यही पूछते हैं, भाई क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? अरे नॉन डिवोटी के साथ आप भगवान की बातें नहीं कर सकते हो। इट्स ओनली डिवोटी विद whom you can ask and inquire. So whenever you get the devotee, just ask them, प्रभु जी माता जी प्लीज सुनाइए ना, कोई कथा सुने, आपने कुछ पढ़ा तो वो बताओ ना, so that I can hear something. So be in a very humble mood, ask them, beg them, please tell me some Krishna katha. So that's how we are taking the advantage of devotee. Not that कि कोई भक्त आया, कहते ना एक मक्खी संग होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मक्खी भी संग लेती है ना, तब मक्खी भी आपके इर्द गिर्द घूमेगी तो वो भी संग ले रही है, मगर उसका कुछ शुद्धिकरण होगा नहीं। हमें मक्खी संग नहीं लेना है। मैं लाइक महाराज से मिले, सेल्फी खींची, इंस्टाग्राम फेसबुक में, फीलिंग ब्लेस्ड, मेट महाराज, भाई ये संग नहीं हुआ। संग क्या होता है? आपने कुछ सुना, कृष्ण कथा सुनी, कुछ प्रश्न पूछे, भक्ति में कैसे बढ़ना है, दैट इज संगा। Not the sangha, oh I had association with devotee, oh I am feeling blessed, people will be commenting, oh Haribol Prabhuji, Haribol Bhai, this is not the sangha.
This is called मक्खी संगा. मक्खी संगा नहीं लेना है हमें. We have to take the मधुमक्खी संगा. मधुमक्खी क्या करती है? फूल के पास जाती है, नेक्टर लेती है ना? So we have to take the nectar of Krishna Katha from the devotees, not just become the makhi, become madhumakhi. ठीक है? Try to lick the honey, don't lick the sores. Okay, so that's how you get the eagerness to hear about the Krishna Katha. Okay, so we'll stop here for today. I'm sorry, I just got over time, but क्या करें, भागवतम है, आप चुप नहीं रह सकते हो. So there are a lot of things to talk about. Yes, any of you having any comments or question or any realizations, so please go ahead. I would like to hear from all of you. So it says dadati pratigrahanati. I try to speak something, now I want to hear also. Okay, so please open up something and speak something what you have heard or any understanding or कुछ आप add करना चाहें. So please go ahead. Yes, Aastha Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you. मतलब actually hearing about Vaishnava is like actually it melts my heart always. Whenever I look at the mercy of Vaishnava, there are a lot of stories I like. We heard like Mrigari and Yes. of Nalkuvara and Manigriva. Like that, there are a lot of stories, and it always melt my heart. Actually, because मैं जब अपनी ground position देखती हूँ ना, like I was also so materialistic, but one day Vaishnavas did mercy, and by the mercy of Vaishnavas like you, I'm still stable. Like at least I'm like, oh, I have to go in this path. Like I'm having this confidence now that I can say like, yes, I have to go in this path. Yeah. This confidence, just it's just all by Vaishnavas. I always think like, मुझे सिर्फ एक ही वर्स जैसे घूम रहा था माइंड में ना कि वो था ना साधु संग सर्व शास्त्र साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि कहे. Even the lava Yes, matra so- sangha of a devotee can transform Yes. your life. But the thing is वो डिपेंड भी करता है कि आप किस इंटेंसिटी से संगा ले रहे हो. वही ना, मक्खी संग ले रहे हो कि मधुमक्खी संग ले रहे हो, that depends. Yes. Yes, Madhuji. नहीं तो ऐसी बात नहीं कि we didn't get the opportunity to have the साधु संगा, हमें मिलता है, मगर डिपेंड करता है कि हमने उसका कितना एडवांटेज लिया है ना, कि हम सिर्फ फोटो छोटो खिंचा के आ गए, अरे हम लोग उनसे मिले. They are not obviously they are celebrities, but it's not the mundane world, it's a spiritual world. Yes. Spiritual world means tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. So we have to inquire and serve the Vaishnavas submissively, then we can advance, otherwise there are no way. Yes. Yeah. ऐसे ही वो मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शंस ना मुझे ऐसे याद आ रहे थे. तो मुझे टाइम याद आ रहा था जब हम लोग के एरिया में संकीर्तन पार्टी आई थी ना. Yes. तभी ऑल द ब्रह्मचारी प्रभु जी एंड महाराज आए थे तभी अब being a girl, so I was feeling so bad about me, like, कि being a girl, I cannot, like, if you see my brother or like my sir, they always all the time they used to stay with the Prabhujis, inquire and do the things, and I'm just feeling so bad that why I am a girl sitting here only. I want No, to. Mataji, it's not about the female want to body. stop. Whenever you are with the sadhus, so just make an humble inquiry. Just make an Yes, humble yes. inquiry. Yes, but actually, Mataji, no, I didn't get the time for that because they used to say, but my home is far. Oh, I cannot stay there for a longer time. And See, but when I whenever go, opportunity you get, one should. yes. Whenever I get the opportunity, I used to talk, like, Yeah. I inquired, but later on I'm feeling like bro just came, but I'm not able to take a full benefit like that. I was feeling. Then said, okay, Krishna, as you say, as you want. I want only service of Vaishnavas, and that's fine. Yeah. I just feel like I'm literally telling Mataji, doing service of Vaishnava is also great fun. Like when Maharaj came here, so making garland for him, or when I was feeling so happy, जब महाराज ने actually मेरा garland accept किया, उन्होंने पूरा दिन पहना था वो garland, and I was like, oh my god. Yeah. Generally होता है कि हम garland निकाल लेते हैं. Yes. But महाराज ने नहीं निकाला. I remember the garland pastime. I was in Vrindavan. तो मेरे जो गुरु माता जी हैं, तो गुरु पूजा में एक्चुअली प्रभुपाद को फूल ऑफर किए जाते हैं ना,
So that day she told me that you want to offer the garland to Prabhupada. I said yes, I will offer. So Guru Mata ji बोला garland लेके आना. So I said okay, and I brought the garland. So Guru Mata ji she told me कि when to offer the garland to Prabhupada. तो she says starting में मत जाना, निकाल देंगे. जब सब लोग ऑफर कर देंगे एंड में जाना और गार्लैंड ऑफर करना, that will remain there. And that's how by the mercy of Guru Mata ji I got to offer the garland to Srila Prabhupada, and that garland remained there for a long time. So see, the Vaishnava mercy comes, you are able to serve the pure devotees. So it's only by her mercy I got the opportunity to offer the garland to Srila Prabhupada. So like that. एंड ऑल्सो एक और चीज हुई थी ना, महाराज थे तो वो एक्चुअली राम मंदिर होता है ना, तो श्री रामचंद्र के टेम्पल में था, तभी Yes. तो मैंने इवनिंग में एक दूसरा गार्लैंड बनाया महाराज के लिए, तो महाराज से नो आई हैव गार्लैंड, यू गिव टू यू नो बाय लाइक एक सीनियर ब्रह्मचारी हमारे टेम्पल के, उनके हाथों से वो गार्लैंड को श्री रामचंद्र जी को पहनाया था. I was like, yes, This is through the Vaishnava, we are able to serve. वैष्णव. Yes, फिर मुझे वो रियलाइज भी हुआ था एक्चुअली माता जी. लाइक फिर मुझे इतना खुशी हो रहा था. वैष्णव सेवा करने का एक अलग भी आनंद है. लाइक So लिटरली if you want to progress, the secret behind is to serve the Vaishnavas, you know. So जब हमारी यस रुचि नहीं आती है किसी भी चीज में डिवोशनल सर्विस में, तो we should just find a devotee and just try to serve them and listen from them, so we are able to grow in bhakti. Yeah, thank you so much Mataji for sharing your experience. So nice. Yes, next Pooja Mataji, yeah, you like to say something? बताइए कुछ. जी माता जी, मेरे को एक चीज पूछनी थी हाँ जी. कि वैष्णव मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. लाइक जैसे कई लोग होते हैं ना, लाइक कि वो जपा भी कर रहे हैं, तो जो जपा करा है वो वैष्णव है. Yes. अच्छा, मतलब लाइक अगर वो गलत काम भी कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज वो जपा कर रहे हैं. They are devotees. ठीक है. अगर मैं आपको बताऊं कि हमें संग किसका लेना चाहिए, माता जी उद्देश्य अमृतम में रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि 3 कैटेगरीज हैं डिवोटीज की. फर्स्ट है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम अधिकारी. ठीक है. जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे अभी हम नए नए होते हैं भक्ति में, ठीक है, जब कर रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट हर किसी का करना चाहिए. कभी भी वैष्णव अपराध से बचना है ना. रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, पुराना हो, जैसा भी हो. हर भक्त को जो भी जप कर रहा है ना, हरि नाम ले रहा है, वो डिवोटी है माता जी, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है. मगर देखो सेवा आप उसी तरह से रिस्पेक्ट करो, मगर ऑबिसेंसेस हमें किसको पे करने चाहिए? मध्यम अधिकारी को. आप इनको मन में आप इनको हरे कृष्णा बोल सकते हो, मन में ऑबिसेंसेस पे कर सकते हो. जो मध्यम अधिकारी आता है, मध्यम अधिकारी वो है जो फिक्स्ड अप है भक्ति में. ठीक है. दीक्षित है, जो दीक्षित होते हैं उनको हमें ऑब्वियसली ऑबिसेंसेस पे करने चाहिए, दांडवत करना चाहिए. जो मध्यम अधिकारी है, जो थोड़े फिक्स्ड अप हैं, आप उनकी सेवाएं देख सकते हो, वो सेवा रेगुलर करते हैं, अपनी साधना में फिक्स्ड अप हैं. ठीक है. उनसे हमें सीखना चाहिए, संग लेना चाहिए. और जो उत्तम अधिकारी हैं, जैसे महाराज आ जाते हैं, महाराज के लेवल पे आ जाते हैं, ये प्योर डिवोटीज है, फुल टाइम रहते हैं, उनका तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे ऑबिसेंसेस. वी नीड ट्राई टू टेक देयर एसोसिएशन, लर्न फ्रॉम देम, एंड वैसा रहता है. तो जो इंक्वायरी है अगर आपको करनी है तो आप अपने से किसी सीनियर से कीजिए. ठीक है. आप उनको आप कैसे समझ सकते हो, देखो जब भी आप उनसे बात करो, अगर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति मतलब अट्रैक्शन नहीं आ रहा ना, सो आप बस हरे कृष्णा बोलो और चले जाओ. ठीक है. हमें ये देखना चाहिए किस भक्त के साथ संग रह के हमें क्या है, कृष्णा के प्रति ज्यादा रुचि आ पाती है, कृष्ण कथा में ज्यादा रुचि आ पाती है, या किसी भक्त को देखते ही हमेशा कृष्ण भगवान की याद आती है, या हमारी कॉन्शियस चेतना अच्छी रहती है, वो भी एक मेजर रहता है. वी कैन, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स. कोई भी भक्त है जिसको देख के अगर कृष्ण भावना में आप नहीं बढ़ पा रहे हो, it seems chalega nahi kaam. So you don't offend them, just say Hare Krishna and try to look some other devotee who will inspire you to render devotional service, भक्ति में आगे बढ़ने में आपको हेल्प कर सके, उनका संग लेना है. ठीक है. So we have to take teachings from मध्यमाधिकारी. उत्तमाधिकारी हमारे गुरु महाराज की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनसे लेना चाहिए. ठीक है. कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं अपने लेवल के, be with them but don't take instructions from them. ठीक है. So like that you can discriminate. Okay, but be respectful to everyone. जी माता जी. ठीक है माता जी. माता जी लाइक मेरी फ्रेंड ही है, मतलब उसको तो बहुत साल हो गए, लाइक भक्ति में 13 साल हो गए. बट प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मैं कुछ पूछती हूँ, मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ जलंधर में कोई डिवोटी को ना, सिर्फ उसी को जानती हूँ. अब मैं कुछ पूछती हूँ तो बताती नहीं है, जैसे कोई फंक्शन है या कुछ है, मैंने बुक ले ली तो कुछ बताता है, मेरे को होता है अरे मैं किससे पूछूं या कुछ ऐसा आता है. फिर मेरे को लगता है अरे मैं वैष्णव अपराध कर रही हूँ उसके प्रति, बट वो बताती नहीं. फिर मेरे को ऐसा होता है कि अच्छा, मतलब फिर मेरे को किसी ने, मैंने बताया अपने किसी डिवोटी को, कहते वो वैष्णव थोड़ी है, बट
मैंने वही सोचा कि वो मतलब एटलीस्ट जाप तो कर ही रही है ना, अगर वैष्णव नहीं, नहीं भी है तो। whoever is chanting माता जी, be grateful to them because they are chanting. भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है. Be respectful to them, you know. नहीं तो कहीं ना कहीं अपराध. देखो भगवान के इतने सारे लोग हैं, कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं. Nobody is chanting, and chanting is not an easy thing. It's not easy thing, you know. Be respectful to them. मगर जैसे मैंने वही बोला, सीखना है, प्रश्न पूछना है तो go to the seniors, ठीक है? Don't take advice from them. So जितना आप उसके साथ संबंध रखो, एक अच्छा संबंध रखो, मगर अगर they don't want to take any interest in telling you anything, it's okay, leave it there, okay? इतना ज़्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, but be respectful because whoever is chanting the holy name, he is a devotee. चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तो कहते थे कि आप बस एक बार हरे कृष्ण नाम ले लो, I will sold myself to you. So he was like very grateful. So whoever is chanting, we should be grateful. At least they are chanting. ये तो इतने दुनिया भरी कितने लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, नास्तिक भरे पड़े हैं. But we should be grateful. At least they are chanting. ठीक है? जी माता जी. जी. ठीक है माता जी. Be grateful to them. Be respectful. अगर वो नहीं इतना कुछ बताना चाहते हो, okay, leave it. Be at distance. ठीक है? Distance पे रहिए, मगर कहीं द्वेष मत पैदा कीजिए मन में. वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. और मोर ओवर माता जी, भक्त ईयर्स से नहीं होता, ईयर से होता है. मतलब YERS, सालों से नहीं मगर कानों से होता है. कानों से मतलब कितना सुनता है और कितना पालन करता है, वो भक्त आता है. ठीक है? मतलब हाउ एडवांस दे आर, उससे आप देख सकते हो. मगर जो भी जब कर रहा है, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए उसके लिए. ठीक है जी. जी. और किसी का कोई प्रश्न है? यस, एनीथिंग एल्स? यस, रघुनंदन प्रभु, हरे कृष्णा. आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. नथिंग माता जी, शुक्रिया, धन्यवाद. हरे कृष्णा. यस. नहीं, नथिंग माता जी, कुछ नहीं है. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, thank you for joining. Yes, but do have something to say about. हमेशा कुछ ना कुछ रखो बोलने के लिए. Maybe the realization or anything you have studied जो आप relate कर पाओ. Because this is not a class. Class क्या होता है? Like जैसे कॉलेज में लेक्चर होते हैं. लेक्चर चला, चलो काम खत्म. No. Devotees are coming together. It means paraspara. Paraspara means आदान प्रदान. So there should be some reciprocation. ठीक है? So we should always have something to say about. Okay, so next time do have something. This is the rule of our session. So ये rule है, हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए. Okay, so that will be there. Next time we'll like to hear something from you. Okay. Yeah, thank you so much for joining. Okay, so we will be ending up here. Thank you so much for being here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the Samad devotees ki jai. Thank you so much. And today there will be Bhagavad Gita class in the evening time because I don't have book, so I don't think I'm going for book distribution today. So evening there will be Bhagavad Gita class as 8:20, so you all can join. Thank you so much. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्ण.